हाय गाइस। तो मैं जैसे कि आपको बताता रहता था कि मेरे चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट यानी कि इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो उस कंटेंट को लाने के लिए मैंने आज कोलैबोरेशन की है तानिया के साथ। तानिया एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं कनाडा के अंदर, और वो कनाडा स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। तो तानिया, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो वी कैन गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Hey guys, I'm Tanya, and for all of you who don't know me, I am an international student who is now in Canada to pursue her post graduation course from Humber College, Toronto. And आज मैं बैठी हूँ इस beautiful park में enjoying the amazing colors of the fall, and I'm going to be answering the most common questions related to staying in Canada and focusing on student life and how it is staying alone. Okay, great. So, Tanya, did you chose Canada for PR or just to get an experience? So, the first question which Mir asked me, and it is one of the most common questions which a lot of people asked me, was did I go to Canada for PR? So, to be honest, uh, when I decided to come here, I did not have anything as such in mind. Obviously, I like to keep that option open for me, but for me, I just wanted to do a post graduation course, and I thought instead of doing it in India, I rather do it internationally and get a different experience. And then, if things work out well, then I can get a PR over here. And if you guys don't know, Canada is probably one of the, compared to UK and USA, Canada is much easier to get a PR into. So, yeah, I did not really have that into consideration, but when you plan, you can definitely choose Canada if you want to have a PR and if you want to settle internationally. अच्छा, तो तानिया, जैसा कि आपको पता है कि मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके के बारे में, लाइक यूके लाइफ के बारे में बताता हूँ। सो डू यू थिंक कि कनाडा इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या कैसा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कनाडा? So far, my experience in Canada has been amazing, and Canada is beautiful. You can see the scenery around, it is actually very beautiful. And this is the fall season in Canada, and each season gives you a different beauty. Other than that, it is multicultural. The people here are welcoming. For Indians, in fact, you will find so many Indians that you will not miss home. So, if you think about it that way, then definitely Canada is an amazing option for international students. So my next question is, what difficulties did you face when you were new in Canada, like a new international student? जब आप शुरू में गई तो क्या क्या मुश्किल आपको हुई, वो प्लीज़ आप बता दें। So being a new student in Canada and being someone who hasn't stayed alone ever, I did feel a little lonely when I first came in, but then I made friends and that thing soon vanished. I do feel homesick. I do feel homesick a lot of times. So staying alone is the biggest and the most difficult thing over here. Other than that, I come from a place where it is hot 12 months of the year. So, staying in Canada, I experienced my first winter. I experienced staying in the snow for the first time, and that was difficult, but it was also really beautiful and an amazing experience. अच्छा तानिया, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं यूके, कनाडा, किसी भी कंट्री, तो दे डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। लाइक मैं उनको हमेशा से कहता हूँ कि अपनी एकोमोडेशन आप अपनी कंट्री से बुक करके जाएं, बट कुछ लोग नहीं सुनते या उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती, सो दे स्ट्रगल अ लॉट। तो फिर वो वहाँ जाते हैं जिस कंट्री में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाके वो स्ट्रगल करते हैं और फिर उनको मसाइल आते हैं। तो कनाडा जाने से पहले स्टूडेंट्स मतलब क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, अगर आप उसके बारे में हमें बताएं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक बिफ़ोर कमिंग तो नहीं पता, बट यहाँ आके काफ़ी लोग ये करते हैं कि जैसे आप पढ़ने आए हैं एंड देन पूरा टाइम काम करेंगे, कैश में जॉब ले लेंगे एंड पूरा टाइम बस काम ही करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई को ध्यान नहीं देंगे। सो दीज थिंग्स जो है वो तब तो कमा लेते हैं पैसे, बट आगे जाके उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने कोर्स से कुछ सीखा नहीं, उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए।
एंड देन अगर वो फिर बाद में उसी फील्ड में रह जाते हैं, उसी फील्ड में आगे उन्हें काम करना पड़ता है. सो एक जो चीज़ है जो मैंने सीखी है कि अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आप पढ़ाई भी करो, पार्ट टाइम जॉब कीजिए बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी है. So, what about part-time jobs in Canada? ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये तो बनता है, तो इस बारे में भी आप बताएं. सो मूविंग टू पार्ट टाइम जॉब्स इन कैनेडा, यहाँ का बेस्ट पार्ट एंड आई थिंक ओवरऑल इंटरनेशनली बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग कोई भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझते हैं. एवरीथिंग इज़ इक्वल टू देम एंड यू कैन गेट पार्ट टाइम जॉब्स ranging from retail stores to fashion stores to security, truck driving, सब options है. and even though आपको शायद तुरंत ना मिले, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, but almost everyone gets a part time job. and talking about the rate, पैसे कितने मिलते हैं, तो यहाँ पे टोरंटो में, ओंटारियो में मिनिमम वेज रेट जो है वो $14 for an hour है, which is around 750-800 Indian rupees. पार्ट टाइम का तो आपने बता दिया. कैन यू टेल अस अबाउट फूड एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह? क्या स्टूडेंट वहाँ पे वर्क करके सारा पे कर सकता है या नहीं कर सकता? So talking about monthly expenses, around up depending on the kind of person you are and the place that you stay, आपका रेंट बहुत वेरी करेगा, but an approximate of $1,000 is what you will be spending on a monthly basis. I have made a detailed video on that. If you want, you can check that out. So that would be $1,000. and आप अगर 20 hours काम करो every week, तो you can easily get $1,000. So आप savings ज़्यादा नहीं करते, but आप equally pay कर लेते हैं. तो आप जो कमा रहे हैं उसमें आप पे कर देते हो, तो आप सेविंग्स नहीं करते, बट आप अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हो एंड आपको घर से पैसे मंगाने नहीं पड़ेंगे. क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आता रहता है स्टूडेंट्स की तरफ से, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं कि ऐसी कंट्री हो जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करके पे कर सकें. ये तो हो गई जॉब्स वगैरह से रिलेटेड. अब थोड़ा सा हमें फिर ये भी बता दें कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स कैसी होती हैं वहाँ पे. इज़ इट ईज़ी टू फाइंड अ जॉब? और फिर ऑफ कोर्स जॉब के बाद तो बंदा पीआर की तरफ ही जाता है. मगर प्लीज़ इफ़ यू नो अबाउट जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन. सो मैंने जो फेस किया है कि पार्ट टाइम जॉब्स तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल टाइम जॉब एंड अपने फील्ड में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है. काफ़ी हंट करना पड़ता है एंड हंटिंग से ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बहुत मैटर करते हैं. एंड अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन का रेफरेंस दे पाओ तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है. तो यहाँ पे नेटवर्किंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड मोर डिटेल्स मैं आपको तभी दे पाऊँगी जब मुझे एक प्रॉपर जॉब मिल जाए. करंटली आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, सो stay updated with my channel if you want to know more about jobs in Canada. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ़नी है, ठीक है, तो ये मगर खैर पूछना बनता है. क्वेश्चन ये है कि इज़ इट ईज़ी टू मैरी अ कैनेडियन नेशनल? ये लड़कियों के लिए, लड़का जो भी मतलब बॉय हो या गर्ल हो, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएं हमें. So is it easy to marry a Canadian and get a PR? It completely depends on you. Canadians are usually very welcoming. वो ऐसे आपसे बात करेंगे, but I really don't know anything about that. I have seen a lot of Indians getting married to Canadians. I don't know if they do it for PR or they do it because they're in love, but that is something which I won't really comment on. अच्छा, बेस्ट सिटी कौन सी है कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? आप यूके का कह लें तो यूके में बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, और मतलब लोग तो समझते हैं यूके पूरा ही अच्छा है, मगर फिर अगेन कुछ सिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, चीप होती हैं एक्सपेंसेस के लिहाज से. मगर यूके में हाँ ऑलमोस्ट सब सिटीज़ अच्छी हैं, मगर मेन जो है जैसे लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, ये सारी अच्छी हैं. तो कनाडा में कौन सी है? द मोस्ट रिकमेंडेड सिटीज़ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो है टोरंटो एंड वैंकूवर. एंड दैट इज़ बिकॉज सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ज़्यादा है एंड ऑल्सो मल्टीकल्चरल ये जगह ज़्यादा है. तो इट्स ईजियर टू गेट इंडियन और इंटरनेशनल स्टफ़ ओवर हियर एंड यू जेल अप विद पीपल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा मल्टीकल्चरल है तो ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं. नाउ इसमें से
टोरंटो का वेदर थोड़ा सा ज़्यादा हार्श होता है एंड वैंकूवर का इनफैक्ट कंपैरेटिवली इट्स वार्मर इन वैंकूवर, सो यू कैन चूज़ डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड एंड आपका कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है आपके फील्ड का. आई चूज़ टोरंटो बिकॉज आई एम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड इट जस्ट मेड मोर सेंस फॉर मी टू कम ओवर हियर बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिखी. तो तानिया मेरे तो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए. तो एंड में अगर आप कोई एडवाइस हमें देना चाहें या स्टूडेंट्स को जो न्यू स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो प्लीज़. So my final verdict and my tips and advices would be कि first of all when you're planning for Canada, be prepared कि international studying is not just a cakewalk. मेहनत करनी पड़ती है. अकेले रहना उतना आसान नहीं है एंड उतना फैंसी नहीं है जितना हमारी सोशल मीडियाज़ पे दिखता है. काफ़ी मेहनत है, बट नेवरदलेस इट इज़ फन एंड इट इज़ डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस जो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि वो एक बार ट्राई करें एंड कम विद एन ओपन माइंड. एंड जो भी आपको जॉब मिलता है पहले कर लीजिए एंड देन कीप लुकिंग फॉर अदर जॉब्स. डोंट कम विथ अ माइंड सेट कि आपको यहाँ आके बस PR ये नहीं है. पढ़ाई करो, जॉब अच्छी मिल जाएगी एंड देन PR होना ही है. And this was all for my video, and if you like it then do like, comment and subscribe, and also do check out my channel and subscribe to my channel as well. And Meer, it was great making this video, and we are going to be having another video on my channel, a collaboration of both of us, so stay tuned for that and see you guys in another video. Hope to see you on my channel and bye. तो गाइस आपने तानिया की सारी बातें सुन ली. उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. तो अगर आप तानिया के बारे में या कैनेडियन स्टूडेंट लाइफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो तानिया का जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, सब कुछ कर दें. तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आएंगी. तो गुड हो गया. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय.